हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਬੋਹਰਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਆਰ ਐਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰ ਐਨ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ nth ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਪਲੱਸ ਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਮਾਈਨਸ ਈ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ nth ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1 Q2 ਓਵਰ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। Q1 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, E, Q2 ਵੀ ਇੱਥੇ E ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਦਾ E ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ E ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਐਨ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਫ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਫ ਐਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਐਫ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ ਆਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ nth ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਐਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਐਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ nth ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਈ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਐਨ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਰ ਐਨ ਇੱਧਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਵੀ ਐਨ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਈ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੋਹਰਸ ਪਾਸਟੂਲੇਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੋਹਰਸ ਪਾਸਟੂਲੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਮ ਵੀ ਆਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਐਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਐਚ ਕ੍ਰੋਸ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਐਚ ਓਵਰ 2 ਪਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਐਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਐਨ ਐਚ ਓਵਰ 2 ਪਾਈ ਐਮ ਤੇ ਆਰ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਵੀ ਐਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ 3 ਇੰਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਨੂੰ 2 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਮ ਐਨ ਐਚ ਓਵਰ 2 ਪਾਈ ਐਮ ਆਰ ਐਨ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਈਟ हैंड साइड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ एम, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एम ਆ ਗਿਆ। ठीक है,
ਤੇ ਨਾਲ n ਸਕੁਅਰ h ਸਕੁਅਰ डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इधर देखो की है ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। हुण देखो अपने कोल जो जो इत्थे देखो 4 ਨਾਲ 4 1 पाई। ठीक है, आर एन स्केयर इत्थे है, इत्थे आर एन है। ठीक है, आप आर एन स्केयर इधर लै जाने, बाकी चीज़ां सारियां इधर ले आने। सो अपने को इत्थे की है देखो एम एन स्केयर एच स्केयर डिवाइड बाय 4 पाई स्केयर एम स्केयर है। ठीक है, तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इधर आ गया, ई स्क्वायर भी डिनोमिनेटर च आ गया। ठीक है, तो इधर अपने को क्या आ गया आर एन स्क्वायर डिनोमिनेटर च है आर एन। ठीक है, सो आर एन जो आप रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करने लिए एनथ ऑर्बिट के आर एन स्क्वायर इधर लै गए, एक आर एन इधर पिया, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, इहदे नाल ई स्क्वायर डिनोमिनेटर च आ गया। ठीक है, हुण जो जो कैंसल आउट होता है देखो 4 नाल 4 कैंसल हो गया, एक पाई कैंसल हो गया, डिनोमिनेटर च एक पाई रह जाएगी, एम नाल एम कैंसल हो जाएगा, एक एम डिनोमिनेटर च रह जाएगा। सो देखो की आएगा इत्थे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, नाल 4 पाई कैंसल हो गया, एप्सिलॉन नॉट रह गया, तो इत्थे की रह जाएगा 4 एक पाई रह गई, नाल एम एक रह जाएगा, नाल ई स्क्वायर। ठीक है, ये सारा कुछ रह गया, तो इस पासे आ गया आर एन। सो एनथ ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, इनू इक्वेशन नंबर 4 आप लिख देंगे। ओके, हाँ जी, देखो इत्थे अपने कोल एच प्लैंक कॉन्स्टेंट होता स्केयर, ये कॉन्स्टेंट है भी कॉन्स्टेंट है, आ भी कॉन्स्टेंट आ भी कॉन्स्टेंट, चार्ज भी कॉन्स्टेंट। सो आर एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर हो गया। इनका मतलब की देखो कि रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट जो ना फस्ट ऑर्बिट के रेडियस नालों सैकेंड का रेडियस जो है वो 4 गुना हो जाएगा, थर्ड का फस्ट नालों 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड ऑर्बिट का 9 टाइम्स हो गया, फोर्थ ऑर्बिट का 16 टाइम्स हो जाएगा। सो इस तरह जी रेडियस की रेशो जी ना इस तरह चलेगी 1:4:9:16। ठीक है, सो इस तरह का ग्राफ जोड़ा ये आएगा बिटवीन रेडियस एंड एन। ठीक है, एंड के नाल रेडियस इस तरह जोड़ा वो बढ़ेगा। ठीक है, सो एन स्केयर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। ठीक है, ओके, हुण देखो एन इत्थे प्रिंसीपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो आप हुण बोहर्स रेडियस की गल करांगे। बोहर्स रेडियस की होंदा देखो जो एन की वैल्यू 1 है ना, एन इक्वल टू 1 पुट करिए तो जी वैल्यू इहदी आएगी उन्होंने आप आर नोट लिख देंगे या कई बुक्स ए नोट भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जी है ना एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर, इनू जो आप वैल्यूज पुट करते हैं, एच की वैल्यू पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की मास ऑफ द इलैक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारिया वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो यदी वैल्यू जी है वो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आती है। ठीक है ना, आलमोस्ट। सो ये बोहर्स रेडियस की वैल्यू जी है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम बन जाती है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बोहर्स रेडियस। ठीक है, सो हम देखो आप स्पीड ऑफ इलैक्ट्रॉन इन द एनथ ऑर्बिट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए देखो आ इक्वेशन है ना जी फोर्थ इक्वेशन, इनू आप इक्वेशन नंबर 3 च पुट करांगे तो अपने कोल आप स्पीड कैलकुलेट करनी है।
ठीक है ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। सो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, सो 4 इन 3 ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 4 ਨੂੰ 3 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ Vn ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, Vn equal to 2 NH divided by 2 pi m ਹੈਗਾ, 2 pi m ਤੇ Rn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਪਾਈ m e ਸਕੁਅਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਈ m e ਸਕੁਅਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ डिनोमिनेटर ਚ आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ਹੁਣ जो कटिया जाता देख लीए आप, कैंसल आउट की हो जाएगा, m कैंसल आउट हो गया, एक NH कैंसल आउट हो गया, ठीक है। सो अपने को Vn की वैल्यू देखो की बन गई, NH इतने n स्क्वायर h स्क्वायर है कैंसल आउट हो गया, पाई कैंसल आउट हो गया, m कैंसल आउट हो गया, ई स्क्वायर रह गया, ठीक है। ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई m खत्म हो गया, एन एच रह गया, नाल एप्सिलॉन नॉट रह गया, ठीक है। सो चेक कर लो, एन एच नाल कैंसल आउट हो गया, एक रह गया एन एच, 2 ये रह गया, पाई पाई एम एम खत्म हो गए, ई स्क्वायर डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट, ये अपने को Vn की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट। इनू आप इक्वेशन नंबर 5 कहांगे। हुण इत्थे देखो E कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, H कॉन्स्टेंट है, सो n दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, सो Vn जिहड़ा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होगी, ठीक है। सो n दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द इलैक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट वेरीज इनवर्सली विद द प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। मतलब की है कि प्रिंसीपल क्वांटम नंबर जिवें जिवें वधदा है उवें वेलोसिटी घटदी है इलैक्ट्रॉन की। सो इलैक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नेड़े है उदों ज़्यादा तेज घूमेगा, जिवें जिवें न्यूक्लियस तो दूर जाई जाएगा उहदी वेलोसिटी जिहड़ी घटदी जाएगी, ठीक है। सो ये वेलोसिटी जिहड़ी है इहदी घटदी जाएगी, देखो। सो इनू आपां ग्राफ जे बनाना होवे वेलोसिटी ते इहदे विच ते अपने कोल इधर आप n लिखांगे, इधर वेलोसिटी लिखांगे, ठीक है। तो जिवें जिवें n वधेगा वेलोसिटी घटेगी तो आप इस तरह नूं बनावांगे, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, तो इस ऐसी रिलेशन बनेगी, ठीक है ना। वेलोसिटी n के वधन नाल वेलोसिटी जिहड़ी है वो इस तरह घटेगी, तो इस तरह का ग्राफ अपना आएगा वेलोसिटी ते n दे विच, ठीक है। और नैक्सट देखो आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलैक्ट्रॉन की। सो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलैक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कैलकुलेट करनी है आप। हम इतने देखो कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है। सो कैनेटिक एनर्जी आप देखो एम वी स्क्वेयर एन की वैल्यू आप इक्वेशन सैकेंड के लिखी हुई सी, ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक है। इनू यूज करांगे, ठीक है ना। कैनेटिक एनर्जी कितने बराबर होती है, हाफ एम वी एन स्क्वेयर हो जाएगा, सो हाफ इंटू दिस हो जाएगा, ठीक है ना, यूजिंग इक्वेशन सैकेंड। सो इक्वेशन 2 ਨੂੰ यूज करांगे, यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। सो अपने को हाफ इत्थे ए वैल्यू आप पुट कर देंगे, ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक है। सो कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने को बन गई 1/8 ई स्क्वेयर पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक है। आ वैल्यू बन गई, ठीक है। इनू आप इक्वेशन नंबर 6 लिख लो, ठीक है। हुण देखो पोटेंशियल एनर्जी की होती है। पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो आर एन दूरी ते पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप किवें कैलकुलेट करते हैं, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज ऑफ द इलैक्ट्रॉन। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जिहड़ी है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी होंदी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, ठीक है ना। चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ई है ओवर आर एन हो जाएगा, ठीक है ना। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू इत्थे चार्ज है
चार्ज ई है न्यूक्लियस पे ते आर एन रेडियस हो गया, ठीक है, इंटू चार्ज होंदा इलैक्ट्रॉन जिहड़ा माइनस ई है, ये पोटैंशियल एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी। तो पोटैंशियल एनर्जी की बन गई माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक है। हुण टोटल एनर्जी की बन जाएगी, देखो तो टोटल एनर्जी आपां इक्वेशन आपां यूज कर चुके हैं, सैकेंड नूं आपां इरेज कर दिंदे हैं। हुण देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू ई एन इक्वल टू kinetic energy plus potential energy, that comes out to be 1 over E square over 8 pi epsilon naught Rn, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਪਲੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, E square divided by 4 pi epsilon naught Rn, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ LCM 8 ਬਣ ਗਿਆ, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन हैगा ही अपने को, ठीक है। सो इत्थे ई स्क्वायर आ गया, इत्थे माइनस 2 ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 8 का एलसीएम है, सो इत्थे माइनस 2 आ जाएगा, 4 इत्थे 4 फैक्टर है, इत्थे 8 है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दे नाल, सो अपने कोल जिहड़ा है एक कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस, ठीक है ना, नैगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इरेज कर दा। हाँ देखो इतने ई एन की वैल्यू अपने को बन गई माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। और देखो आर एन की वैल्यू इक्वेशन 4 च अपने को पई है, सो यूजिंग इक्वेशन 4 इन दिस इक्वेशन 4 इतने आप यूज करा, तो देखो ई एन की वैल्यू की बन जाएगी माइनस ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन की वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर च है उल्ट लिखांगे पाई एम ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर एन की जी वैल्यू ये अपने को आ गई। हुण देखो इत्थे पाई नाल पाई कैंसल हो गया, तो ई की पावर जी है वो -4 हो जाएगी, सो ई एन इक्वल टू माइनस ई पावर 4 नाल एम फैक्टर आ गया, मास ऑफ द इलैक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 पाई कैंसल हो गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। हुण देखो इत्थे भी आपां नैगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना, सो टोटल एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन इज नैगेटिव, तो अट्रैक्टिव सिस्टम के कारण ये नैगेटिव एनर्जी जी आती है, ठीक है ना। जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस है, ठीक है। सो इनू कहते हैं बाउंड सिस्टम होने करके ये नैगेटिव एनर्जी जी है ये वैल्यू आई, ओके। हुण आपां इहदी कैलकुलेशन करनी है भी कितनी वैल्यू ये बनती है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8.854 into 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नोट मास ऑफ द इलैक्ट्रॉन एम की वैल्यू होती है 9.1 ×10⁻31 kg, ठीक है। ये मास हो गया। चार्ज ऑफ द इलैक्ट्रॉन ई की वैल्यू होती है 1.6 ×10⁻19 कूलम, ठीक है। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जो है उसकी वैल्यू होती है 6.63 ×10⁻34 जूल सैकेंड, ठीक है। ये वैल्यू होती है सारी जी वैल्यूज आप इतने अपने को लगियां ने, ये वैल्यूज आप पुट करा ना जो ये ई एन जोड़ा है उसकी वैल्यू अपने को बन जाएगी -13.6 ओवर एन स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर ही कला रह जाएगा, ई की वैल्यू पुट होगी, मास भी हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट भी हो जाएगा, एच भी हो जाएगा, एन स्क्वायर रह जाएगा डिनोमिनेटर से,
-13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी टोटल एनर्जी की। ठीक है, nth ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलैक्ट्रॉन ਆਪਾਂ कैलकुलेट करना है nth ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो टाइम कितना लगता है? सो देखो टाइम की होता है ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ। ठीक है ना, इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜਾ है वो ओमेगा ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ रेडियस rn है, तो ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ की वैल्यू कितनी होती है? डिस्टेंस हो गया 2 पाई rn डिवाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट। और वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट अपने को देखो rn की वैल्यू आ लिखी इक्वेशन 4 नाल, तो इक्वेशन 5 च अपने को वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट कितनी सीगी, ਉਹਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ ਆ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ e स्क्वायर ओवर 2 h एप्सिलॉन नॉट n। ठीक है ना, ये वेलोसिटी इक्वेशन 5 तो आई सी अपने को। ठीक है ना, इक्वेशन 5 तो वेलोसिटी की वैल्यू, तो इक्वेशन 4 तो आप rn की वैल्यू ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। rn अपने को लगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वेशन 5 आ इक्वेशन 5 है, आ इक्वेशन 4 है, इन्होंने दोनों यूज़ करांगे आप इक्वेशन ਇਹਦੇ ਚ टाइम पीरियड कैलकुलेट करने ਲਈ। सो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी बन गई अपने को 2 पाई rn की वैल्यू पुट करांगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m e स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर च वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी जी है इदा आप रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है ना, सो रेसिप्रोकल इतने लिख देंगे डिनोमिनेटर च है, इनू उल्ट करके लिख देंगे। सो 2 h एप्सिलॉन नॉट n ओवर e स्क्वायर। ओके, सो इतने देखो जो जो कैंसल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू अपने को कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड देखो इतने कितना आ गया अपने को h क्यूब हो जाएगा, तो 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, पाई कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो n क्यूब हो गया, h भी क्यूब हो गया, n क्यूब h क्यूब। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर नाल आ गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो नाल देखो पाई कैंसल आउट हो चुका है, तो m e स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है ना, e स्क्वायर के नाल e स्क्वायर e4 हो जाएगा, m e4। ओके, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन द हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम च इलेक्ट्रॉन का ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, n 4n स्क्वायर 4n क्यूब। ठीक है ना, इतने n स्क्वायर इतने भी n क्यूब आएगा। ठीक है, 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m e4। ओके, ये सारी वैल्यू जी है टाइम पीरियड की आ गई। हुण देखो इत्थे अपने को टाइम पीरियड जिहड़ा है आ सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है 4h एप्सिलॉन नॉट m e4। सो t जिहड़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब हो गया। ठीक है, n क्यूब ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम पीरियड जिहड़ा है ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ऑर्बिट 'ਚ 8 ਟਾਈਮਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, थर्ड ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਟਾਈਮਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਲੋ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਵਿਦ ਹਾਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ टाइम पीरियड उन्होंने घट है, तो जिमें जिमें दूर जाई जाते सूरज तो वो टाइम पीरियड उन्होंने वधदा रहिंदा है। ठीक है ना, सो इस तरह इलैक्ट्रॉन्स की जी मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस होंदी है। सो टाइम पीरियड जिहड़ा वो n मतलब प्रिंसीपल क्वांटम नंबर के क्यूब नाल वेरी करता है जिमें जिमें आप दूर जाते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है ना, इलैक्ट्रॉन जिमें जिमें न्यूक्लियस तो दूर जाता है। ठीक है, देखो नैक्सट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट।
ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ nth ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ me⁴ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 4n³ h³ ε0 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ n³ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ n = 1 ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਗੇ ਨਾ, n = 1 ਕਰਾਂਗੇ, ਆ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ 9.1 × 10⁻31, ਚਾਰਜ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 4h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 6.63 × 10⁻34, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਰਾਂਗੇ। ε0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 8.854 × 10⁻12, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6.57 × 10⁵ rps ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਉਂਡਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ n³ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, n³ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ 8th ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6,57,000 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 6,57,000 ਟਾਈਮਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 1/8 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1/8 ਮਤਲਬ 82 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 82,000 rps ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, 27th ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ, 27th ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 rps ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ En = -13.6 n² ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ n = 1, ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ E1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ -13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸੋ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ E = ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13.6/4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ n = 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ -13.6/4 ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ -3.4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ -3.4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ ਜਾਏਗੀ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ -13.6/9 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ -1.51 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -13.6/n² ਮਤਲਬ 16 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ <1 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, -0.85 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਫਥ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -13.6/25 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ -0.54 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਕਸਥ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ -0.38, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਬਿਟ ਜਦੋਂ n = ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ E∞ = 0 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਆਪਾਂ
ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ n = 1 ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ -13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ n = 2 ਲਈ -3.4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, n = 3 ਲਈ -1.51, 4 ਲਈ 0.85, 5 ਲਈ 0.54, 6 ਲਈ 0.38 ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਈ n = ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਈ 0 ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3.4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਟਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਇਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ nth ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -me²/8h²/ε0। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ -13.6 /n² ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਟੂ ਲੋਅਰ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੋਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ hν ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ Ni ਮਾਈਨਸ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਲੋਅਰ ਸਟੇਟ Nf ਵੇਅਰ Ni ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ Nf। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੋਟੋਨ। ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ hν ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ En ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ hν ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ hν = -me²e⁴/8 h² -me⁴/8 ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। hν ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ me⁴ ਓਕੇ 8h² ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ 1/। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ Ni। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਆ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1/Ni ਆ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ -me⁴ 8h² ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1/NF⁴ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ me⁴/8h²∉0²
एच न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो नेगेटिव आ माइनस हो जाएगा, आ प्लस हो जाएगा। सो 1/f एफ इधर हो जाएगा, -1/n आई जोड़ा इधर हो जाएगा। ठीक है, आ नैगेटिव हो जाएगा, आ पॉजिटिव हो जाएगा जो नैगेटिव साइन आप इंट्रोड्यूस करा अंदर। ठीक है, हम देखो जोड़ा एच न्यू सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होंगे। ठीक है ना, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है ना, सो अपने को न्यू की वैल्यू जी है c/λ होगी। सो c/λ इतने पुट कर देंगे अपना, तो एच c/λ इज इक्वल टू m(e⁴ डिवाइड बाय 8h² ε0² इंटू 1/nf² -1/ni², वेयर ni इज ग्रेटर दैन nf। ठीक है, हम देखो 1/λ की वैल्यू कितनी रह जानी है, 1/λ की वैल्यू hc भी इधर ले आओ, डिनोमिनेटर आ जाएगा m(e⁴ 8h³ हो जाएगा, ε0² नाल c आ गया, तो नाल 1/nf² -1/ni², आ सारी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, सो रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, सो रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ 1/λ। ठीक है, सो 1/λ ये सारी देखो m कॉन्स्टेंट है, e⁴ भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, 8h³ ε0 इस वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ये सारा कुछ कॉन्स्टेंट है। ये सारी कॉन्स्टेंट को आप एक नाम देंगे जिन्होंने लिखांगे रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट आर, ये कैपिटल आर हो गया। ठीक है, तो नाल इतने फैक्टर अपने को बन गया 1/nf² -1/ni², आ वैल्यू बन गई। ठीक है, सो लैम्डा इज द वेवलेंथ, कादी वेवलेंथ है, स्पैक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द इलैक्ट्रॉन। कि कदों एमिट होंगी है, जो इलैक्ट्रॉन जंप करता फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है ना, ये एमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिंदी वेवलेंथ जी लैम्डा है। ठीक है, तो आर रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू जी है आर की वैल्यू अपने को लगी है, देखो 1.097। ये सारी वैल्यूज देखो आप पुट करके ना सारे फैक्टर्स जो इन्हों की वैल्यू पुट कर दी है, तो अपने को इन्नी वैल्यू बनती है × 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है ना, ये वैल्यू रह जाती है पर मीटर। ठीक है, रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट, तो अपने को रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ आर 1/nf² -1/ni²। ठीक है ना, आ वैल्यू रह जाएगी। सो यू आप कहते रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ जी एमिटेड लाइट जी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन है। तो जे आप इधर इनू ए लिखीए तो आप एवं लिखते हैं, इनू कहते वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा 1/λ जोड़ा है, उन्होंने आप सीधा लिखिए तो न्यू बार पावे, इनू वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, सो वेव नंबर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आर 1/nf² -1/ni²। ठीक है, सो ये फार्मूला अपने को जनरेट हो गया कि हम लाइन जी एमिट करनी ने, स्पैक्ट्रम लाइन जी ने उनके बारे आप गल करांगे। हम देखो आप स्पैक्ट्रल लाइन्स की गल करनी है। सो फस्ट है लाइमन सीरीज। सो लाइमन सीरीज स्पैक्ट्रल लाइन्स किवें बनदियां ने, जो इलैक्ट्रॉन जंप करता है ना फ्रॉम हायर स्टेट्स, जिमें n = 2 3 4 हायर स्टेट्स तो फस्ट स्टेट से NF की वैल्यू 1 हो जाएगी, NI की वैल्यू 2 तो स्टार्ट होकर ऊपर चलेगी। ठीक है ना, सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कदों होगी, जो NF की वैल्यू 1 होएगी तो NI की वैल्यू 2 होएगी। इतने आप पुट करांगे तो अपने को 1/λ की वैल्यू जी आर 1/1 -1/2²। ठीक है, सो 1/λ इतने आर की वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो अपने को जी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज की वैल्यू है ना, वो आ जाती है, देखो आर 1 -1/4। सो 1/λ इज इक्वल टू आर
इतने 4 आ गया, 4 माइनस 1, ठीक है। सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाय 4r, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू जी है वो आप लिखांगे, वो लिख देंगे 4 बाय 3r, ठीक है। सो 4 बाय 3 इंटू आर की वैल्यू अपने को 1.097, ठीक है, इंटू 10⁻⁷ है। तो लैम्डा की वैल्यू अपने को जी इतने कैलकुलेट करके कितनी बन जाएगी, देखो ये सारा फैक्टर जोड़ा है ये कितनी आ जाएगी 1.216 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। सो इनू आर्मस्ट्रांग च लिखना हो तो इतने 1216 कह देंगे, 1210 की पावर -10 हो जाएगी, ठीक है, मीटर। सो 1216 आर्मस्ट्रांग लैम्डा की वैल्यू बन गई जी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होएगी, ठीक है ना। इस तरह जी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लई इहदी वैल्यू जी है इत्थे इनफिनिटी पुट करांगे, ठीक है। ठीक है, देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लई NF इक्वल टू 1, मतलब इनफिनिट लैवल तो आप फस्ट लैवल पर जो इलैक्ट्रॉन जंप करेगा तो जी लाइन अमिट होएगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होएगी। इत्थे सैकेंड तो फस्ट तो इलैक्ट्रॉन जो जंप किया तो 1216 एंगस्ट्रॉम की जी है वो वेवलेंथ की लाइन जी है अमिट हुई, ठीक है। सो इत्थे देखो कि ये 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R 1 बाय 1 माइनस 1 बाय इनफिनिटी, ये हो जाएगा। सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R, ये 1 हो जाएगा सारा। सो लैम्डा की वैल्यू 1 बाय R हो जाएगी। सो लैम्डा की वैल्यू 1/1.097 इंटू पावर 7 होगी। सो 1 लैम्डा की वैल्यू जी है ये अपने को आ जाएगी 0.911 इंटू पावर -7, इनू 911 आर्मस्ट्रांग के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। 10 की पावर -10 करा 3 जीरो इधर आ जाएगी, इतने -10 हो जाएगी। सो मिनीमम 211 आर्मस्ट्रांग की तो मैक्सीमम 1216 आर्मस्ट्रांग की जी वेवलेंथ अमिट करेगा। सो फर्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज, ये अल्ट्रा वायलट रीजन है, ठीक है। सो अल्ट्रा वायलट रीजन के जी है लाइट अमिट हो रही है, ठीक है, दोनों केसिस जी लाइमन सीरीज हाईएस्ट तो लोएस्ट भी, ठीक है। सो सारी यूवी रीजन जी अमिशन हो रही है, ठीक है। सैकेंड है बाल्मर सीरीज। और देखो जी बाल्मर सीरीज है उत्थे NF की वैल्यू 2 है तो NI 3 4 5 हायर लैवल होएगा। 1 बाय लैम्डा R 1/NF की वैल्यू 2 2 स्केयर माइनस इतने 3 स्केयर तो लैके इनफिनिट स्केयर तक चलेगा। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कदों होएगी जो इतने N की वैल्यू 3 होएगी NI की, ठीक है ना। सो उहदे लिए आप 3 पुट किया तो 1/4 - 1/9 हो गया, ठीक है। सो 36 LCM आ गया, 9 - 4 5/36 R आ गया। तो अपने को जो बीटा मैक्सीमम बाल्मर की मैक्सीमम जी वेवलेंथ है ये कितनी बन जाएगी 36/5R, ठीक है। सो 36/5R इनू पुट करा R की वैल्यू इतने तो अपने को इन्नी वैल्यू बन जाएगी 6559 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। R की वैल्यू तुम्हें पता है 1.097 × 10⁻7 है, ऊपर जाके -7 हो जाएगी, ठीक है। सो ये देखो ये विजिबल रीजन के आ गया। सो ये मैक्सीमम जी वेवलेंथ इन्नी इमिट की इन्हें तो मिनीमम वेवलेंथ जी इमिट करेगी ना, मिनीमम जो इमिट करेगी NI की वैल्यू आप इनफिनिटी पुट करा इतने इनफिनिटी आ जाएगी, देखो तो 1/4 R आ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू 4/R आ जाएगी, ठीक है ना। ये 4/R आ जाएगी। सो 4/R 4/1.097 इंटू 10⁻⁷ करा तो अपने को लैम्डा B मिनीमम जोड़ा है वो अपने को 3644, ठीक है, 3644 आर्मस्ट्रांग। सो ये विजिबल रीजन च लाइट होती है, ठीक है ना। सो विजिबल रीजन के विब ग्योर आप वायलट तो जो रैड वाल जाते हैं, ठीक है ना, तो वायलट तो लैके रैड वाल तकरीबन 7000 आर्मस्ट्रांग 7500 आर्मस्ट्रांग तक जोड़ा है तकरीबन
32-3300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7500 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਇਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਜੇ 7500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਰਡ ਲਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ, ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਡ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥਰਡ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ 18741, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਏਗੀ ਉਹ 8199 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8200 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ n=4 ਤੇ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ 5 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 40599 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ 14576 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ IR ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਫਥ ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਫਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫਿਫਥ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ 6-7 ਔਨਵਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ 6 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 74,7536 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ IR ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਫਥ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ 22,775 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ IR ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਸਟ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 3.4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੈ, ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 1.5 ਹੈ, ਇੱਥੇ 0.85 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੇ ਰਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਥਰਡ ਤੇ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼, फोर्थ ਤੇ जंप करती ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ ਤੇ जंप करती है तो फंड सीरीज अपने को आ रही है। सो ये फ्रॉम सैकेंड ऑनवर्ड्स ये एक्साइटेड लैवल ने, ये ग्राउंड लैवल है, ठीक है। इस तरह आप डायग्राम इदी बना सकते हैं। और देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की होती है, देखो एटम चो इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ E ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਈਨਸ E1, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ 0 ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13-13.6 ਹੈ। ਸੋ -13.6 ਪਲੱਸ 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਸਟ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਕਡ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਸੋ 13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।